Dear children, welcome to our Hindi 2L class. This is our revision video. Yes, because we are going to write in this month end or next month term 2 examination. So, in this video, our revision class and revision video. In this video, we are going to see about two topic, that is Apatit Gadyams and another one is Chitra Varna. How to write Apatit Gadyams and चित्र वर्ण, इसके बारे में हम यह वीडियो पर देखेंगे. Yeah, in this video the two topics we are going to see. The first one is Apatit Gadyams, that means unseen passage. The first Roman is in your question paper or in our book also, in a sample paper also. And another Roman is in a चित्र देखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है. For the first one is Apatit Gadyams. What is that means Apatit Gadyams? Patit apatit. That means unseen passage. This part is apart from our lessons. In any one paragraph they will given and we have to read and find out the answer the question. So this is the Apatit Gadyams. Patit Gadyams ka arth in our paragraph taken from our lesson. In Apatit Gadyams, apart from our lesson or books. Now I want to tell Apatit बोध का अर्थ क्या है. पहले ना पढ़े हुए गद्यांश को ये पद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को समझना अपठित बोध कहलाता है. That means we are not seen in any in our lessons. अपठित गद्यांश या पद्यांश पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. उन प्रश्नों का उत्तर देने से कुछ नियमों हम ध्यान में देना बहुत आवश्यक है. First we have to follow some rules when you start writing before Apatit Gadyams, unseen passage. The first one is Gadyams या Padyams. What is Gadyams or Padyams? Paragraph or poem. That is Gadyams या Padyams. वो 2 या 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए. Yes, first we have to read the paragraph or poem 3 or 4 times. We must read. And the next one, सीमित शब्दों में उत्तर दे. शीर्षक के प्रश्न पर विशेष ध्यान दे. Yeah, first we have to concentrate in the heading. शीर्षक अर्थ heading. कम से कम शब्दों से संबंधित होना चाहिए. And the last one is very important. उत्तर अपने शब्दों में लिखना का प्रयास करना बहुत आवश्यक है. For what is that meaning? That means we have to make an answer from the questions in our own sentence, not from in a same like in a copy. So we have to make an answer in our own sentence. उत्तर अपने शब्दों में लिखना प्रयास करना बहुत आवश्यक है. Again I read these 4 rules. What are they? गद्यांश या पद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत आवश्यक है. एंड सेकेंड वन, सीमित शब्दों में उत्तर देना है. नेक्स्ट थर्ड वन, शीर्षक के प्रश्न पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है और शीर्षक कम से कम शब्दों का होना आवश्यक है. एट द लास्ट वन, उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना बहुत बहुत आवश्यक है. नाउ you see on the screen the first one, for example, two reading that means Apatit Gadyams दिया गया है on screen पर. आप देखिए, first one is you see, समय बहुत मूल्यवान होता है. समय का अर्थ we know very well, that is in a time. The time is valuable. यह बीत जाए तो लाखों करोड़ रुपये खर्चे करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है. Yes, is it correct or not? समय is a valuable, time is valuable things and we spend more lakhs and crore rupees, it not get back in a time. इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है
उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर गड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालयों में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। Now I read only one time this paragraph, but I don't understand this meaning. So again I read this paragraph and understand that paragraph meaning. Is it clear? Now once again I read the paragraph. You see very carefully. समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ रुपये खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से आप पूछिए जो एवरी सेकेंड इज वैल्यूएबल, जो सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालय में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। सो द टाइम, how we keep up the time, how is very important in our life in a time. So in this matter, this paragraph it insists about that. And the next one, in each and every seconds in a time is very valuable. It is not get in a spend a lot of money, lakhs and crore, we will not get back the time. So when we follow the time, we will achieve our goal and our lakshya. So time is a very valuable things. Now you see on the screen some question answers also is given there. 2 types of question answers is given here. One is बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर के द्वारा एक प्रश्न और क्वेश्चन है, और दूसरा है क्वेश्चन एंड पैराग्राफ आंसर्स लाइक दैट वन. द फर्स्ट वन यू सी, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है. दिस इज वेरी इजी टू फाइंड द आंसर because there are 3-4 option is there from that paragraph, so we find the answer very easily, like choose the best answer. Again I read the first question. उपरोक्त गद्यांश में the following paragraphs कीमती, which one is valuable things, किसी माना गया है, जीवन को, लाइफ, अनुशासन, डिसिप्लिन, और समय को और खेल को. Which one is the valuable things? Yes, correct. The correct answer is samayako. You see the screen, see on the screen, the correct answer is underlined and color should be changed. So इस पद्यांश में कीमती चीज क्या है, किसे माना गया है, समय को. और you see the second question answer question, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा. Those one who spend his life very happily, जिसने दुनिया में खूब धन कमाया. Those one who get a more money. The second one, जिसने मीठी बानी बोली, one who talk about in a very sweet voice. The third one, जिसने समय की कद्र की.
नो दोस वन हु फॉलो द टाइम कीपिंग एंड जिसने समय के बर्बाद किया, वेस्ट ऑफ द टाइम, वन हु स्पेंड द टाइम इज वेस्ट. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, द जिसने समय की कद्र की, यही अपने जीवन में सुख के साथ जीवन गुजारा, नहीं तो वे समय को बर्बाद किया तो उसे कैसे सुख जीवन पा सकते हैं. इसलिए किसी सुख के साथ जीवन गुजारा होना चाहिए तो वो व्यक्ति समय की कद्र की करना बहुत आवश्यक है. अगेन आई रीड द सेकेंड क्वेश्चन आंसर. किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? द करेक्ट आंसर इज जिसने समय की कद्र की. दिस आंसर इज इन द पैराग्राफ, so that's why I am telling again and again we have to read the paragraph 2 or 3 times and understood that meanings. Now, or else how can we get the answer, find the answer? So it is very important thing. We read the paragraph 2 or 3 times, then only we have to answer this question answer. And you see the third one now. सेकेंड के सव्वे हिस्से से पद कौन चूक जाता है इन ईच सेकेंड किसके बहुत आवश्यक है. जिसने समय को बर्बाद किया, सेकेंड के सव्वे हिस्से से पद कौन चूके जाता है. खिलाड़ी जिसने मामूली अंदर से पदक, पदक का अर्थ क्या माँ? दैट मीन्स मेडल. द what I am telling in a player, those one who play in the player, the time is second is very must, so then only he will achieve his lakshya or medal. So सेकंड के सव्वई हिस्से से पदक कौन चूक जाता है. खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गवा दिया हो, वह यात्री जिसके ट्रेन छूट गई. उपर्युक्त दोनों लोग, वो दोनों लोग कौन कौन है? द सही आंसर इज खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गवा दिया हो और यात्री जिसके ट्रेन छूट गई है. सो द करेक्ट आंसर इज उपर्युक्त दोनों लोग, यही सही आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? यू आर द स्टूडेंट्स नाउ. देन in when we follow the time keep up, in what we will get in gain through time. Which one is what gain you will get? The four answer is given. वे स्वस्थ हो जाता है, वे मेधावी बन जाता है, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इस गद्यांश को उपर्युक्त शीर्षक होगा. नाउ सॉरी मैम, द फोर आंसर इज ओनली विच वन इज द करेक्ट आंसर? व्हेन वी फॉलो द time keep up, we will get in 100% of mark in each and every place. So this is the correct answer, because our class ma'am given homework we do today. So தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு செய்கிற ஒர்க்கை இன்றைக்கே நம்ம செஞ்சிடணும். ஸோ whenever we have in a homework or class work or reading work, we do at the same time. We leave that one, how we will get in 100% of mark. So समय को सही रूप से हम पालन करने तो हम क्या प्राप्त करेंगे? सभी विषयों में in all the things or messages we will get in 100% of percentage in each and every places. So छात्रों का समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? वे का अर्थ आप छात्रों सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन आंसर यू सी, इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक. ऑलरेडी आई टोल्ड इन बिफोर इन starting in this video, शीर्षक के प्रश्न, दैट्स वी हैव टू कीप हेडिंग, दैट मीन्स शीर्षक इस पैराग्राफ के संबंधित होना चाहिए. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा. गिव द टाइटल, करेक्ट टाइटल इन दिस पैराग्राफ. विच वन इज द करेक्ट टाइटल? समय का मूल्य
जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, अनुशासन. You know that meaning, समय का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम एंड एम ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य, और विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व. In our life, how is important in a time and discipline. But in this paragraph, insist in all other sides. Not only विद्यार्थी, खिलाड़ी और हर एक व्यक्ति को बारे में भी समय कैसे बहुत मूल्यवान है उसके बारे में है. इसलिए इस पैराग्राफ, इस गद्यांश को सही शीर्षक क्या है? समय का मूल्य. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये ही इस शीर्षक सही रूप है इस पैराग्राफ को. नाउ आई टोल्ड ऑलरेडी इन some different question answers. Now first, before we saw that in बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर के द्वारा we saw that in the next type is प्रश्न और उत्तर. It is not choose correct answers like in a sentence. The first one, the same paragraph and different types of question and answer is here. You see, गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है. हम सबको अच्छी तरह मालूम है इस गद्यांश के किसे मूल्यवान है? समय. और मूल्यवान बताया गया है क्यों? why is it is very valuable? Because क्योंकि वह बीत जाए तो, वह समय बीत जाए तो हम लाखों और करोड़ रुपए खर्च होने भी उसको समय वापस नहीं आ सकता है. इसलिए इस गद्यांश में समय, नॉट ओनली इस गद्यांश, समय मूल्यवान बताया गया है. यू सी ऑन द स्क्रीन माँ, गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है. द आंसर इज गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है. माँ, ऑलरेडी आई टोल्ड द आंसर in our own sentence should be must, because already I told no, the answer is not copy from the same paragraph. We have to change some difference and we have to give our own words like that. गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान है? समय मूल्यवान बताया है. क्यों? क्योंकि यदि वह बीत जाए तो, वह का मतलब समय, वह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ समय रुपये खर्च करके भी बीता हुआ समय वापस नहीं हो सकता है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, यू सी, समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होगा? how is the life of following in a timekeeper life? How is it? समय के महत्व को समझने वालों का जीवन सुगमय होता है. It's that people's life is very happy. वे अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं. They spend his life very happily. So those one who following timekeeper, that person only spend his life very happily. So this is the answer. Again I read, समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होगा? समय के महत्व को समझने वालों को जीवन सुगमय होता है. वे अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं. एंड थर्ड क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? कौन है? समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है. एंड फोर्थ वन, समय का हर पल कीमती होता है. हम सबको इस मालूम है. इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण पेश किया है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स इज गिवन फ्रॉम दिस पैराग्राफ? इस कथन के लिए गद्यांश में कौन कौन है? खिलाड़ी का उदाहरण पेश किया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था. That means the people's it's leave it in a 1 second he lost his medal. So it is every second is must for खिलाड़ीज. So this example is given in this paragraph. इस गद्यांश में खिलाड़ी का उदाहरण पेश किया है. क्यों? उनके मालूम है एवरी सेकेंड कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि
एक सेकंड के द्वारा वो लॉस करे तो उनका पदक नहीं जीत सका था। इसलिए खिलाड़ी के इस पैराग्राफ में उदाहरण पेश किया गया है। एंड द लास्ट वन, इस गद्यांश में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? व्हाट इज लर्न, व्हाट मॉरल और व्हाट मैसेज वी लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ? इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ, हमें सदैव समय के मूल्य को समझाना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द टाइम कीप अप एंड वैल्यूएबल ऑफ टाइम्स एंड और अपने जीवन में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। And the another thing is we don't waste our time in our life in each and every seconds, क्योंकि बिकॉज समय मूल्यवान है, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। इसको आवाने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। Those one who waste the time, that people's not get victory in a lakshay, we will not get in our life. So we should follow the time, keep up, then only we will get our achieve. So in this paragraph हम क्या सीख मिलती है? समय का मूल्यवान समझकर उसके सही रूप से पालन करना तो हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, नहीं तो वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। And you see on the screen the second paragraph, these also apatit gadyams. Ma, this is for only in example. So you the same one, it is not in our book, this is apart from our book in a lessons. So you see the same way. First we have to read the 2 or 3 times this paragraph. You see on the screen now. बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, ऋषि एवं उद्योगों के उत्पादनों के कमी आदि। What is it meaning? बढ़ती जनसंख्या, in an increasing population in facing so many problems. What are the problems? रोटी, food, dress, house, इसकी कमी in a less quantity, and बेरोजगारी और निरक्षरता, ऋषि in agri land, and another things also वो उत्पादनों का कमी आदि है। The produce is in a very less quantity. So in this problem we have to face nowadays. हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। However, we follow so many ideas and difficulties, but we not less our population. जनसंख्या का अर्थ population. They day by day they will be increased in a population. In our government also follow so many rules, but it what happened? It is not control in a population. बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रहा जाता है और विकास कार्य दिखाई नहीं देता। बढ़ती जनसंख्या क्षमता सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। Already I told, no, in our government, state government or central government take so many rules and follow that reduce our population, but they will fail. It is not positive results. So कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नग्न सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। So what is in the main is population increasing nowadays in our country. What happened? Increasing the population. So our government takes so many steps and rules, but they will failed. And we want to develop in our country. First we have to concentrate in reducing our population. So in हमारा विकास कैसे हुआ तो हमें पहले जनसंख्या को कम करना बहुत आवश्यक है। उनके बिना
सभी प्रियतन अधूरे रह जाएंगे. So this is the main message in this paragraph. Now you see the question and answer. Same I told in a two types. First one is choose the best correct answer. That means बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर के द्वारा एक क्वेश्चन आंसर है और फ्रेमिंग दैट सेंटेंस नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स like a लघु प्रश्न short answers. The first one you see the question. बढ़ती जनसंख्या से किस में कमी आई है? बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों. Which one is the correct answer? Yes, बढ़ती जनसंख्या से किस में कमी आई है? ऋषि अग्री, ऋषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आई है. And second one you see, जनसंख्या बढ़ने से किन चीजों में बढ़ोतरी हुई है? Again I read the same question. जनसंख्या बढ़ने से किन चीजों में बढ़ोतरी हुई है? लोगों के कार्य करने की क्षमता में, शिक्षा में, गरीबी एवं बेरोजगारी में. Yes, the correct answer is poorness. In a whole country, in a 1/3 of peoples are very poor. So गरीबी एवं बेरोजगारी में. And third question, हमारा विकास कार्य दिखाई नहीं देता. क्यों? क्योंकि विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है. In population is very most of increasing. So nowadays, so जनसंख्या के कारण हमारा विकास अनुपात में वृद्धि नहीं पा सकते हैं. So the answer, correct answer question, what is that question? हमारा विकास, our development, कार्य दिखाई नहीं देता. Why we show in our development? Why? Because विकास के अनुपात, in obstacle, what is that obstacle? जनसंख्या. विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, इसके कारण हमारा विकास कार्य नहीं दिखा देता है. And ऑलरेडी आई टोल्ड इन लघु प्रश्न के रूप में इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न और उत्तर है. द फर्स्ट वन, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? बढ़ती जनसंख्या ने कई प्रकार की समस्याओं के जन्म दिया है. इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, विच वन इज फॉलोइंग इन शो इज हिज मोर need for maximum things. Which one is? रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, ऋषि एवं उद्योगों के उत्पादनों के कमी आदि है. So nowadays, day by day, our population is increasing. What are the deficit of our things? Roti, kapada, makan, and niraksharata, agri. So these all are in a very less quantities. And second question, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा विकास कार्य नहीं दिखाई देता है. The one and only main reason is increasing population. So that's why our development is not shine in our country. And the third question, excuse me, बढ़ती जनसंख्या के सामने कौन से प्रयास असफल दिखाई देती है? बढ़ती जनसंख्या के सामने सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं. एंड द लास्ट वन, नग्नई शब्द का सही अर्थ क्या है? सम वर्ड्स इज गिवन इन अ न्यू वर्ड. नग्नई, दैट मीन्स उस शब्द का सही अर्थ अपर्याप्त है. सो दैट इज व्हाट इज दैट मीनिंग? नग्नई, that is नग्नई का शब्द का सही अर्थ अपर्याप्त. Ma, now I understood we understood that how to write in a apatit gadyams. Again and again I tell the same things. First we have to read the paragraph 2 or 3 times and we understood, then only we answer the following questions. Children, you see on the screen the next part is चित्र वर्ण. दैट मीन्स निम्नलिखित चित्र, निम्न दिए गए चित्र का वर्ण
20 या 30 शब्दों में कीजिए. दिस वन इज हेडिंग. और निम्न चित्र का वर्ण 4 या 5 वाक्य में लिखिए. दिस इज द हेडिंग इन आवर क्वेश्चन पेपर और इन आवर बुक आल्सो. दिस इज इन own creative writing. And how to write this one first? You see on the screen the first picture is, can you guess what is this? Yes, in a Mahabharat story, Drona and Drona teaching Vidya to Nashika. What is that I am telling in a Vil Vidya to teach that Pandavas. So in this picture what we learn how to write first this one. फर्स्ट वी स्टार्ट. इस चित्र से यह पता चलता है कि. और एंड अनदर वन महाभारत की प्रसिद्ध घटना है. फर्स्ट वी हैव टू राइट वॉट एवर वी नो दे वांट टू स्टार्ट राइट. फर्स्ट वन, दिस इज कैन वी आइडेंटिफाई दैट महाभारत. सो वी हैव टू फ्रेम द सेंटेंस महाभारत की प्रसिद्ध घटना है. और गौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य थे. वो पांडव और गौरव ने द्रोणाचार्य का शिष्य थे. वे धनुष चलाने की विद्या सीख चुके थे. एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा ली. क्या परीक्षा? आप देखिए, एक वृक्ष पर एक पक्षी बैठे है और वो द्रोणा ने हर एक पांडवों और गौरवों से पूछा है क्या तो कोई उस पक्षी के आंख में धनुष चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना के लिए कहा. सो ये ही परीक्षा दी. कौन किसके लिए? पांडव और गौरवों के लिए द्रोण ने इस विद्या को एक परीक्षा रखी. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट राइट. फर्स्ट यू सी द पिक्चर एंड स्टार्ट राइट. सिर्फ 5 वाक्य लिखना इनफ है. इस चित्र से यह पता चलता है कि यह महाभारत की प्रसिद्ध घटना है. यहाँ गौरव और पांडव और द्रोणा ने खड़े हुए हैं. और गौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे. वे क्या करें? वे धनुष चलाने की विद्या सीख चुके थे. दे हैव टू कंप्लीटेड हिज विद्या एजुकेशन. एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा ली. उन्होंने एक पेड़ पर बनावटी चिड़िया टांग दी. उन्होंने सभी पांडवों को एक एक करके बुलाया और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा. सो यू राइट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक दिस पिक्चर अबाउट दिस पिक्चर. नाउ यू अंडरस्टूड दैट. और अगेन आई टेल वन टेल दिस meaning. Sorry, not a meaning. I want to tell about this picture. Just 5 lines. The first one is, इस चित्र से यह पता चलता है कि यह महाभारत की प्रसिद्ध घटना है. And the second point is, गौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे. And next point, third point is, वे धनुष चलाने की विद्या सीख चुके थे. And another point is, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा ली. नेक्स्ट वन, उन्होंने एक पेड़ पर बनावटी चिड़िया टांग दी. द लास्ट पॉइंट, उन्होंने सभी पांडवों को एक एक करके बुलाया और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वन. दिस इज वेरी सिंपल. एंड नेक्स्ट पिक्चर यू सी ऑन द स्क्रीन. What is that? एक माँ और बेटी बहुत प्यार से गले लगे हैं. इसके बारे में हम कुछ शब्दों के द्वारा 5 वाक्य लिखना ज़रूरत है. कैसे लिखना है? माँ के कंधों पर सवार होकर बेटी वह कैसी है? खुशी से है.
और उसने स्वर्ग जीत लिया हो। माँ ऐसी प्रसन्न है मानो उसकी जन्म जन्म की कामना पूरी हो गई हो। दोनों धन्य है। और एज यू राइट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, यह चित्र से हम यह पता चला है कि एक माँ और बेटी बहुत प्यार से गले लगा दिया गया है और वो दोनों बहुत खुशी है। और नेक्स्ट वन, मानो वे स्वर्ग जीत लिया हो। माँ ऐसी प्रसन्न है मानो उसकी जन्म जन्म की कामना पूरी हो गई हो। दोनों कैसे है इस चित्र में, बहुत खुशी है। सो इसी तरह आप लिखना बहुत आसान है। And last picture you see, you know already this story, tortoise and rabbit story. Yeah. Then so you have to write in a own sentence about these pictures, simply 5 lines. How to write? First you see that picture and then start to write. पहाड़ी रास्ता है, ये वो रास्ता कैसे है, पहाड़ी रास्ता है। नदी कल कल करके बह रही है, वहाँ नदी है, इस चित्र में नहीं है, सो इसलिए वह रास्ता पहाड़ी रास्ता है, द फर्स्ट पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट इज एक खरगोश और कछुए में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई है। द फर्स्ट पॉइंट इज पहाड़ी रास्ता है, दैट इज इन अ माउंटेन प्लेस। And the next point is you see on the screen 2 animals is there, turtle and rabbit. So एक खरगोश और एक कछुए में दौड़ प्रतियोगिता, रनिंग कंपटीशन, दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड है। हम सबको मालूम है इस कहानी में खरगोश कैसे है, बहुत गर्व है, कैसे अपनी तेज चाल पर। सो द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट, खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वह घमंड के नशे में चूर होकर सो गया है। सो खरगोश इसलिए अपने घमंड से क्या करे, इस दौड़ में वह कुछ समय सो गया है। और उसके परिणाम क्या हुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ नदी किनार पहुंच गया है। सिर्फ ये लिखना इनफ है। Again I want to tell this about these pictures. This first one is you keep a heading also, you keep in a heading कछुए और खरगोश की दौड़। फर्स्ट पॉइंट इज पहाड़ी रास्ता है। द सेकेंड पॉइंट इज नदी, यहाँ नदी नहीं है, एक खरगोश और एक कछुए के बीच में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खरगोश अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड है, इसलिए वह घमंड के कारण कुछ देर तक सो गया है। इसके परिणाम कैसा हुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया है, वो है इस दौड़ प्रतियोगिता में विन करेंगे। सो इसी तरह आप लिखना बहुत आसान है। डियर चिल्ड्रन, I hope you in this video we have to discuss about 2 types, अपठित गद्यांश कैसा लिखना है और चित्र वर्ण। एक चित्र के बारे में 5 वाक्य और 20 या 30 शब्दों में लिखिए हैं, वो कैसे लिखते हैं, बहुत आसान से। I hope you understood very easily. Thank you children, धन्यवाद।